Namaskar, I am Sushma Meher from Department of School of Education, Uttarakhand. Today, we are going to discuss part 3 of chapter 2, Greetings, from class 1 textbook Mridang. Points that we are going to discuss today are, firstly, we are going to read the poem, then we will read a story also. Later on, we will learn some new words which will be coming in the poem as well as in the story. Then we will discuss some question and answers, and in the end we will do some interesting activities related to it. So let us start. Here you can see a picture in which there are many people doing different kinds of work. आपके सामने ये एक पिक्चर है जिसमें आप देख रहे होंगे कि बहुत से लोग हैं जो अलग अलग प्रकार के काम कर रहे हैं. You can see this girl bringing a basket of flowers. ये लड़की basket of flowers लेके आ रही है. These two boys playing lattu. This lady is combing hair of a girl. The two children are decorating the window. Old lady is giving bath to a toddler. Here we can also see a cow who is being given some grass to eat by two people here. And also we can see a man washing a scooter. You have one more part of this picture. This picture is also a part of that. In this picture also we can see an old man giving some instructions and these girls with this man drawing rangoli. इस पिक्चर में भी आप देख सकते हैं कि एक बच्चे जो हैं यहाँ पे रंगोली बना रहे हैं और एक बुजुर्ग आदमी उनकी तरफ आते हुए कुछ उनसे कह रहे हैं. So if we go back to this picture, first of all we are going to find who are there in this family. ये पिक्चर एक फैमिली का है और हमें ये पता करना है कि who are there in this family. फैमिली का मतलब परिवार. तो इस बहुत बड़ी फैमिली में कौन कौन होंगे, चलिए पता करते हैं. तो let us start from here. Yes, ये हैं ग्रैंडमदर जो एक छोटे से बच्चे को नहला रही हैं. ग्रैंडमदर गिविंग बाथ टू अ टॉडलर. साथ ही यहाँ पे ये एक लेडी है जो कि हो सकता है परिवार में मदर की भूमिका में हो. मदर कोम्बिंग हेयर ऑफ हर डॉटर. एक माँ अपनी बेटी के बाल बना रही है. शी इज कोम्बिंग हेयर हेयर. दो बच्चे, टू किड्स आर डेकोरेटिंग दिस वॉल विथ फ्लावर्स. दो बच्चे इस विंडो को डेकोरेट कर रहे हैं, सजा रहे हैं फूलों से. लगता है घर में कोई त्योहार मनाया जा रहा है. साथ ही आप देखेंगे यहाँ पर एक पुरुष स्कूटर को धो रहे हैं. Here you will find one man, हो सकता है वो परिवार में पिताजी की भूमिका में हो. फादर वॉशिंग स्कूटर. उनके साथ मदद कर रही है एक छोटी सी बालिका. A small girl helping, maybe she is the daughter and she is helping her father in washing the scooter. Alongside you will find two children. A young girl with a small boy giving feed to the cow. गाय को एक बड़ी बहन अपने छोटे भाई के साथ या कजिन ब्रदर के साथ गाय को चारा दे रही है. साथ ही साथ हम यहाँ पर देखेंगे कि दो बच्चे, अगर आप देख रहे होंगे, दो बच्चे क्या कर रहे हैं, आपस में खेल रहे हैं और एक जो बच्चा है वो अपने हाथ के ऊपर लट्टू चला रहा है. इस पिक्चर में भी आप देखेंगे कि ये होंगे घर के बड़े जो कि ग्रैंडफादर, जिन्हें हम दादाजी कहते हैं, और साथ ही साथ में ये बालिकाएं हैं यहाँ पर जो कि रंगोली सजाने में अपने पिताजी या अपने अंकल की मदद कर रही हैं. तो who are there in this family?
We can say that there is grandfather, grandmother, uncle, auntie, mother, father, brother, sister and cousins in this family. तो आपके परिवार में भी, जैसे आपके परिवार में है दादाजी, दादी जी, आपके अंकल, आपकी आंटी, मम्मी, पापा, भाई बहन, ये सब क्या है, आपकी फैमिली का एक पार्ट होते हैं। उसी प्रकार से इस पिक्चर में भी आप देखेंगे कि फैमिली मेंबर्स हैं जो कि इस पिक्चर का पार्ट हैं। What are they doing? फैमिली मेंबर्स क्या कर रहे हैं? तो देखें हम क्या कर रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पे आते हैं, मदर combing hair of her daughter. Grandmother is giving bath to a toddler. Two kids are giving feed to the cow. Father and a young girl washing scooter. Brother and sister decorating the wall. Two kids playing lattu, or we can say top, and grandfather giving instructions to the people, maybe uncle and the kids giving instructions to them about Rangoli. So, how do you help your family? आप अपनी फैमिली को कैसे हेल्प करते हैं? हेल्प करना मतलब किस प्रकार से मदद करते हैं? जी हाँ, आप तो छोटे हैं, लेकिन आप अपनी फैमिली को किसी न किसी प्रकार से तो मदद कर रहे होंगे ना? So how do you help your family? So here you will see this girl is helping her father in cleaning the scooter. तो आप भी अपने घर में छोटे-मोटे काम में अपनी मदर की हेल्प कर रहे होते होंगे, like watering the plants or cleaning some things in which your mother can get help, or giving food to the pet animals. आपके घर में जो pet animals होते हैं उनको भी आप खाना देने में मदद करते होंगे, आप watering the plants करते होंगे, आप गमलों को पानी देते होंगे, साफ सफाई में अपनी मदर की आप हेल्प कर रहे होते होंगे। What did you like the most in this picture? आपके सामने पिक्चर है, इस पिक्चर में आपको सबसे अच्छा क्या लगा? अगर मैं if I speak about myself, I like this portion of making rangoli by the kids and the man in the family. मुझे ये रंगोली का पोर्शन बहुत अच्छा लगा। So now children, we are going to recite a poem which is based on my family. My family, my means मेरा, और family का मतलब होता है परिवार। हम सब का परिवार होता है, उस परिवार में मदर होती हैं, फादर होते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, ब्रदर सिस्टर होते हैं और कजन्स भी होते हैं। So let us start this poem. The poem goes like this. Mother, mother, will you play with me? Yes, I shall. Yes, I shall. We are a family. तो देखिए पोएम में क्या बोल रहे हैं, मदर मदर, मम्मी मम्मी, will you play with me? क्या तुम मेरे साथ खेलोगी? Play means खेलना। Yes, I shall. Yes, I shall. We are a family. हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, हम क्या है, एक परिवार का हिस्सा है। Family means परिवार। Father, father, will you eat with me? Yes, I shall. Yes, I shall. We are a family. तो बच्चा बोलता है, Father, father, पिताजी, पिताजी, will you eat with me? क्या आप मेरे साथ खाओगे, खाना खाओगे? Yes, I shall. Yes, I shall. हाँ बिल्कुल, we are a family. हम क्या हैं? We are a family. हम family हैं। Brother, sister, will you dance with me? Yes, I shall. Yes, I shall. We are a family. Brother, भाई, sister, बहन, will you dance with me? क्या आप मेरे साथ डांस करोगे? Yes, I shall. Yes, I shall. हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, we are a family. हम क्या है? एक family हैं।
Grandmother, grandmother, will you sing with me? Yes, I shall. Yes, I shall. We are a family. तो grandmother, grandmother, grandmother मतलब दादी। और अगर आप आपके पिताजी की साइड से है, आपके पिताजी की माँ, उसको हम बोलते हैं दादी जी। और अगर आपकी जो माता जी की माँ होंगी, उनको हम बोलेंगे नानी जी। तो वो बोल रहा है बच्चा कि ग्रैंडमदर, ग्रैंडमदर, विल यू सिंग विद मी? सिंग मतलब गाना। तो ग्रैंडमदर, ग्रैंडमदर, क्या आप मेरे साथ गाना गाओगी? यस आई शेल, यस आई शेल। ग्रैंडमदर कहती हैं बिल्कुल, वी आर अ फैमिली, वी आर अ फैमिली। हम क्या है? एक फैमिली है। Grandfather, grandfather, will you read with me? Yes, I shall. Yes, I shall. We are a family. तो बच्चा पूछता है अपने ग्रैंडफादर को, ग्रैंडफादर आपके पिताजी के जो पिताजी हैं उनको आप कहेंगे दादाजी, और यदि आपकी माताजी के जो पिताजी हैं उनको हम कहेंगे नाना जी। तो बच्चा ग्रैंडफादर से बोलता है ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर, विल यू रीड विद मी? क्या आप मेरे साथ पढ़ोगे? रीड मीन्स पढ़ना। Yes, I shall. Yes, I shall. We are a family. तो ग्रैंडफादर बोलते हैं बिल्कुल मैं आपके साथ पढ़ूंगा। क्यों? क्योंकि we are a family. तो देखा आपने कि किस प्रकार से हमारे फैमिली मेंबर्स हमारी मदद करते हैं। So all the family members, they all help us and they all take care of us. तो आपकी फैमिली में भी, आपकी फैमिली में ग्रैंडफादर भी होंगे, ग्रैंडमदर भी होंगी, मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर। आपने उन सब के साथ मिलजुल के काम करना होता है, और इसीलिए फैमिली होती है जहाँ पे प्यार होता है, रिस्पेक्ट होती है, और हम सब एक दूसरे की मदद के लिए तैयार होते हैं। सो वी ऑल शुड लव एंड रिस्पेक्ट आवर फैमिली। तो नाउ नेक्स्ट हम लोग अब एक छोटी सी स्टोरी पढ़ रहे होंगे। So now we are going to read a small story about my sparrow family. My, मेरा, sparrow छोटी सी एक चिड़िया जिसको हम गौरैया बोलते हैं, family परिवार। My sparrow family एक गौरैया के परिवार की एक कहानी है। Mama and Papa sparrow were making a nest. Mama and Papa Sparrow were making a nest. तो मम्मा एंड पापा स्पैरो क्या बना रहे थे? बना रहे थे वे एक घोंसला। They found a safe place. तो उन्हें एक सुरक्षित जगह मिल गई। Found मिलना, safe सुरक्षित, और place का मतलब होता है जगह। तो घोंसला बनाने के लिए मम्मा और पापा स्पैरो को एक सेफ जगह मिल गई थी। The little nest was soon ready. The little nest, छोटा सा घोंसला, was soon ready. Soon का मतलब होता है जल्दी ही, तैयार हो गया था। Ready means तैयार होना। It was soft and warm. घोंसला कैसा था? सॉफ्ट, कोमल, एंड वार्म, और बड़ा ही गर्म सा। सो लेट अस रीड इट अगेन। मम्मा एंड पापा स्पैरो वर मेकिंग अ नेस्ट। दे फाउंड अ सेफ प्लेस। द लिटिल नेस्ट वाज सून रेडी। इट वाज सॉफ्ट एंड वार्म। Mama Sparrow laid 3 small eggs. मम्मा स्पैरो जो मां गौरैया थी, उन्होंने क्या किया? He laid 3 small eggs. उन्होंने 3 अंडे दिए, छोटे अंडे। One day the eggs broke open. एक दिन, one day the eggs broke open. जो अंडे थे वो क्या हुए? वो टूट गए। 3 little heads popped out. 3 little heads popped out. तो 3 छोटे से जो सिर थे वो उन अंडों से popped out मतलब बाहर निकल गए।
जैसे ही वो अंडे टूटे, फट से उनमें से 3 छोटे से जो सिर थे वो बाहर निकल आए। पॉप्ड आउट मीन्स बाहर निकलना। पापा स्पैरो ब्रॉट फूड फॉर देम। जो पापा गौरैया था वो क्या लाए? ब्रॉट मतलब लाना। क्या लाए वो? उन छोटे छोटे 3 छोटे छोटे बच्चों के लिए क्या लाए वो? फूड फॉर देम। उनके लिए वो भोजन लेके आए। सो लेट अस रीड इट अगेन। Mama Sparrow laid 3 small eggs. One day, the eggs broke open. 3 little heads popped out. Papa Sparrow brought food for them. Grandmother and Grandfather Sparrow, Aunt and Uncle Sparrow, cousins and friends all came to meet the baby sparrows. Grandmother and grandfather sparrow मतलब दादाजी और जो उन स्पैरोज के नाना जी थे, दादाजी, नाना जी, दादी माँ, ग्रैंडमदर दादी माँ या नानी माँ, ग्रैंडफादर दादाजी या नाना जी, उनके साथ साथ आंट एंड अंकल। आंट एंड अंकल चाचा चाची या मामा मामी। कजन्स एंड फ्रेंड्स। कजन्स आपके चाचा चाची के जो बच्चे होते हैं उनके हम कजन्स कहते हैं, है ना, चचेरे भाई बहन या ममेरे भाई बहन। एंड फ्रेंड्स जो उनके दोस्त थे, किनके? स्पैरो के, मामा स्पैरो एंड पापा स्पैरो। दे ऑल केम टू मीट द बेबी स्पैरोज। तो सारे जो फैमिली मेंबर्स थे वो सब के सब कहाँ आए? किनको मिलने आए? मीट मीन्स मिलना, बेबी स्पैरोज को मिलने आए। तो फैमिली के सारे जो मेंबर्स थे वो सब बेबी स्पैरोज को मिलने आए। लेट अस रीड इट अगेन। Grandmother and grandfather sparrow, aunt and uncle sparrow, cousins and friends all came to meet the baby sparrows. वे सभी किनको मिलने आए? बेबी स्पैरोज को मिलने आए। तो फैमिली के कितने मेंबर्स थे यहाँ पे देखिए? ग्रैंडमदर, ग्रैंडफादर, आंट, अंकल, कजिन्स, they all came to meet the baby sparrows. The baby sparrows grew bigger and bigger. अब जो छोटे से बेबी स्पैरोज थे, अब क्या हुआ? वो धीरे धीरे बढ़ने लगे, बड़े होने लगे। One day, the baby sparrows hopped out of the nest. एक दिन एक बेबी स्पैरो जो छोटा गौरैया का बच्चा था वो अचानक से ही फुदक गया वो बाहर। Hopped out of the nest, अपने घोंसले से, अपने नेस्ट से वो बाहर की ओर फुदक गया। They flew up into the big blue sky. और जो वो बेबी गौरैया थी, छोटे छोटे जो गौरैया थे जो अब हॉपिंग करने लग गए थे, नेस्ट से बाहर आने लगे थे, वो सभी सब क्या हो गए? They flew up into the big blue sky. वो सभी नीले आसमान की ओर उड़ने लग गए। तो अब बेबी स्पैरोज एंड मामा एंड पापा स्पैरोज वो सब के सब इकट्ठे कहाँ उड़ गए? आसमान की ओर उड़ने लग गए। So let us read this again. The baby sparrows grew bigger and bigger. One day, the baby sparrows hopped out of the nest. They flew up into the big blue sky. So this was the story of my sparrow family. So now we are going to discuss some new words that we have come across in this story of my sparrow family. So the first word that you can see is nest. N-E-S-T, nest. Meaning of nest? Nest का मतलब होता है घोंसला. The second word that we have come across is sparrow. Sparrow, S-P-A-R-R-O-W. Sparrow एक छोटी सी चिड़िया का नाम होता है जिसे हम गौरैया कहते हैं. The third word is egg. Egg, अंडे. E-double-G, egg. Next word is grandmother. Grandmother.
G-R-A-N-D, grand. Mother, M-O-T-H-E-R. Grandmother means दादी जी. अगर वो आपके फादर की मदर है तो दादी जी, और अगर वो आपकी मदर की मदर है तो नानी जी. The next word is grandfather. G-R-A-N-D, grand. F-A-T-H-E-R, father. Grandfather. Grandfather अगर वो आपके पिताजी के पिताजी हैं तो आपके दादाजी, और यदि वो आपकी माताजी के पिताजी हैं तो हम क्या कहेंगे उन्हें? नाना जी. The next word is aunt. A-U-N-T, aunt. Aunt आपके घर में, आप के परिवार में चाची जी या मामी जी और बुआ जी, हम इन सबको क्या बोलते हैं? आंट. नेक्स्ट इज अंकल. U-N-C-L-E, अंकल. हमारी फैमिलीज में चाचा जी, ताऊ जी, मामा जी, तो अंकल. नेक्स्ट वर्ड इज कजिन. C-O-U-S-I-N, कजिन. कजिन आपके चचेरे भाई बहन या आपके ममेरे भाई बहन. M-O-T-H-E-R, मदर. मदर माँ जी या माता जी. फादर, F-A-T-H-E-R, फादर, पिताजी. So these were the new words that we have come across in this story. So now let us do some question and answers related to the story that we have read in My Sparrow Family. So the first question is, who are there in your family? मतलब आपकी फैमिली में कौन कौन है? अगर आपकी फैमिली में आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, आपके अंकल हैं, आंटी हैं, तो आपने उन सब के बारे में यहाँ पे बताना है. तो जैसे मेरी फैमिली में आई हैव ग्रैंडफादर, आई हैव ग्रैंडमदर, आई हैव माय फादर, मदर, अंकल, आंटी, and I have 2 brothers and 1 sister, and I have many cousins in my family. तो similarly आप भी अपनी फैमिली के बारे में हमें बताएंगे. The next one is, so how do you help each other? So we help each other by doing small work like helping mother in cleaning. कभी कभी हम अपनी मदर को हेल्प करते हैं क्लीनिंग में, या watering the plants, वाटरिंग द प्लांट्स, है ना, या फिर हम कभी कभी मम्मी को हेल्प करते हैं कुकिंग में भी. ठीक है. सो इस प्रकार से हम एक दूसरे की मदद कर रहे होते हैं. सो वी हेल्प ईच अदर इन क्लीनिंग और इन वाटरिंग द प्लांट्स, इन कीपिंग द कबर्ड्स क्लीन, in giving food to the pets. So there are many ways in which the family members help each other. The third question says, what are the names of your grandparents, both paternal and maternal? इसका मतलब कि आपको अपने ग्रैंड पेरेंट्स के नाम लिखने हैं. जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपके पापा की जो मम्मी है उनको हम बोलेंगे दादी माँ. तो पापा की तरफ के जो आपके पापा के पापा मम्मी होंगे वो होंगे पैटर्नल साइड के. ठीक है. तो दादी माँ और दादाजी हुए पैटर्नल साइड के, और जो आपकी मम्मी के साइड के आपकी मम्मी के जो पापा और मम्मी होंगे उनको आप कहेंगे नाना जी और नानी जी. तो आपको अपने ग्रैंड पेरेंट्स के, अपने दादा दादी जी के साथ ही साथ अपने नाना नानी जी के भी नाम आपको बताने हैं. ठीक. The next question says, which bird do you see around your house? Which bird? आप कौन सी चिड़िया को अपने घर के आसपास देखते हैं? जी, yes, बताइए. Which bird do you see around your house? बहुत सारी बर्ड्स होती हैं. जैसे क्रो, है ना, कौवा, या कई बार कबूतर भी नजर आते हैं जिसे हम पिजन कहते हैं. तो मैं अपने घर के आसपास जो बर्ड्स देखती हूँ वो एक तो है पिजन और दूसरा है क्रो, कौवा. तो ऐसे ही आपके भी घर के आसपास आपको
बर्ड्स नजर आती होंगी। तो पिजन मतलब कबूतर और क्रो मीन्स कौवा। ठीक, और साथ ही साथ मुझे अपने घर के आसपास स्पैरो भी नजर आती है, गौरैया। अब अपने पेरेंट्स को पूछना कि आपको अपने घर के आसपास जो बर्ड्स नजर आती हैं उनके क्या नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, if you were the baby sparrow, where would you go flying? क्वेश्चन बोलता है if you were the baby sparrow, अगर आप बेबी गौरैया होते, छोटी जो गौरैया थी, अगर आप वो होते बेबी गौरैया, तो where would you go flying? तो आप कहाँ उड़ते? बताइए कहाँ उड़ते? Where would you go flying? Yes, अगर आप बेबी गौरैया होते तो आप कहाँ जाते? Out of the nest and up in the sky, है ना? जब बेबी गौरैया के फेदर्स आ जाते हैं, उनके जब पंख आ जाते हैं, तो वो अपनी नेस्ट से बाहर हॉप्ड आउट होते हैं ना, बाहर फुदकते हैं और धीरे धीरे वो उड़ करके कहाँ चले जाते हैं? आसमान की ओर उड़ना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट इज, व्हाट डू यू थिंक द बेबी स्पैरोज सॉ फ्रॉम द स्काई? आपको क्या लगता है कि जो बेबी स्पैरो थी उसने आसमान से क्या देखा होगा? स्काई मतलब आसमान। So what do you think the baby sparrows saw from the sky? क्या क्या दिखा होगा उसको आसमान से? इमेजिन कीजिए, क्या लगता है आपको जब वो आसमान में उड़ी होंगी तो? Yes, from the sky they must have seen big ground, है ना? जमीन में क्या क्या दिखता है हमें? We can see big grounds, houses, बहुत सारे houses हमें दिखाई देते हैं, buildings, etc. Trees also. etc. बहुत सारी चीजें दिखाई दें। आप भी सोचिए कि अगर आप बेबी स्पैरो होते और आप अगर हवा में उड़ रहे होते ऊपर, तो आपको क्या क्या दिख रहा होता जमीन पर, है ना? तो बिग ग्राउंड आपको दिखेगा, आपको हाउसेस दिख रहे होंगे, बिल्डिंग्स दिख रही होंगी, ट्रीज दिख रहे होंगे, जंगल दिख रहे होंगे, है ना? ग्रास के लैंड्स दिख रहे होंगे। तो बहुत सारी चीजें हमें आसमान से नीचे की ओर दिखती हैं। So after reading this story, My Sparrow Family, now you all must be clear about how the family members help each other and why the family members are important for us. So I'm giving you a home assignment. The home assignment is that you have to write the names of your family members. आप अपने फैमिली मेंबर्स के नाम लिखेंगे। आप उनसे पूछेंगे, आपके फैमिली में जो भी होंगे, आप उन सबके जो है नाम पूछेंगे, आप उनका नाम भी लिखेंगे। So the points that we discussed in this session, we have read the poem, then we also read the story. The name of the story was My Sparrow Family. We learned some new words from the story as well as from the poem. We did some question and answers also, and also some interesting activity. So that was all in this session of English class today. Hope you enjoyed it. Thank you.